Good morning and welcome back, dear children. Welcome back to Simplified Maths. दोस्तों, today we are going to do the exercise based on the topic which we did last in the last lecture. In the last video, what we have seen, I just revised it here because if you don't remind this or don't remember this, then you will not be able to do the sums. That is why I just written the definition of invertible matrix. हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये देख लिया था. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ वी गेट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी मतलब ए इंटू बी multiplication is equal to ba is equal to I means identity matrix. If this happens, then the matrix B is said to be inverse matrix of A. And in notation, we will write B is equal to A inverse. This we will write B is equal to A inverse. And in such a case, A is said to be or A is called invertible matrix. This is what we have seen last time. Already हमने last time भी ये लिखा हुआ है दोस्तों. Okay, right. And also we have seen the two or three results based on this. There is a uniqueness. Uniqueness of the invertible matrix means if the inverse matrix exists, for any matrix if the inverse exists, then it is always unique. याद है ना? एक वो भी हमने देख लिया था और एक लास्ट में मेरे ख्याल से हमने ये देखा था that AB inverse is equal to B inverse A inverse. बराबर? ये भी थोड़ा unusual result है, मैंने बोला थोड़ा typical है because here AB but here the term interchange. Here B second comes B first, B inverse A inverse. ठीक है? So all these we have seen in the last lecture दोस्तों. अभी how to find the inverse? If you are given any matrix either 2 by 2 or 3 by 3 because it is written clearly mentioned square. Square matrix बोला इसका मतलब कि either 2 by 2, 3 by 3. हमारे सिलेबस में 4 by 4 onwards कोई है नहीं. So either it will be asked for 2 by 2 or it will be asked for 3 by 3. Okay. Also, what we did in the last lecture दोस्तों, we have seen certain elementary operations. याद है ना elementary operations? Ri to Rj, Ci to Cj means interchanging the row, interchanging the column like that. Ri to Kri means multiplying the ith row with K. वो सब जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो सब अभी एक्सरसाइज 3.4 जो हम आज करने वाले हैं उसमें ये आने वाला है दोस्तों. ओके, राइट. अभी all of you just look in the textbook. Everyone will have the textbook open right now. Page number 97. Okay, page number 97. There are total 17 sum up to sum number 17. The question title is same. Using elementary transformations, find the inverse. Okay, find the inverse if it exists. ऐसा लिखा हुआ है. Okay, using elementary transformation. Transformation means you can say operations. Using elementary transformation means operations. Okay, find. ये टाइटल होगा एग्जाम में इसी तरह से पूछेंगे. यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स गिवन बिलो. ओके, गिवन बिलो में यहाँ पे टोटल कितने सम्स है? 17. ओके, राइट फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम सम नंबर 1 टू सम नंबर 17. सो I think मुझे सब सम करने की जरूरत नहीं है. I will do one or sum of the 2 by 2 means square matrix of order 2 and I will take one sum from the square matrix of order 3. एक 2 by 2 वाला करेंगे, एक 3 by 3 वाला करेंगे. तो बाकी सब कॉपी पेस्ट इन द सेंस
कॉपी पेस्ट मतलब ये मत समझना कि सम का सम पूरा कॉपी, बट द मेथड नो चेंज। ओके, जो मैं कर रहा हूं उसी मेथड से आपको सारे के सारे सम्स करने होंगे। ओके, राइट। नाउ बिफोर आई बिगिन the question for the to solve the sum to find the inverse, there is an important note, very important note करके मैं आपको एक दे देता हूं, that we know that I is an identity matrix that all of us know. Okay, we know that any matrix A is equal to IA. You can write, because what is I is an identity matrix. I को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यू गेट द सेम मैट्रिक्स A ओनली. We know that A is equal to IA and A is equal to AI. दोनों तरीके से हो सकता है, A is equal to IA और A is equal to AI. In whatever order, okay, you will get A only, right? This is what we know. So whenever you want to find, okay, find the inverse. Inverse मैं ऊपर लिखना भूल गया, sorry. Find the inverse matrix. Okay, find the inverse matrix, okay, of the given below. ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन बिलो, मतलब जो भी टोटल 17 सम्स है. तो मैंने ये क्यों रिमाइंड करवाया आपको, व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स, whenever we want to find out the inverse, okay, when we want to find the inverse of any matrix, find the inverse of any matrix, okay, any given matrix A, okay, we will, let us say we will मतलब compulsory, we will begin, okay, with any one of the above, begin with any one of the above, okay, as a first step, as a first step. मतलब when you want to start the sum, when you want to begin the sum, then you have to start with either A is equal to AI or A is equal to IA. ये दो में से किसी एक से आप स्टार्ट करेंगे, ये रूल है, कंपल्सरी है, समझ लो. ओके, बिगिन विथ एनी वन ऑफ द अबव एज अ फर्स्ट टर्म. ओके, राइट. एंड नाउ आफ्टर दैट हाउ टू प्रोसीड, इसके बाद आइदर यू स्टार्ट विथ दिस वन A is equal to IA or you start with A is equal to AI, and then how to proceed, that I will explain with an example only. Okay, yes, ऐसे पूरा लिख के नहीं समझा रहा हूं मैं, बट थियोरिकली नहीं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट प्रैक्टिकली. एक सम ले लेंगे एक्सरसाइज 3.4 में से ही, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट टू डू, जस्ट सी. ठीक है, राइट. ऐसा मत समझना कि आप A इज इक्वल टू आई ए लेंगे तो इजी पड़ेगा और ये इज इक्वल टू ए आई लोगे तो इजी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों मेथड में सेम ही रहने वाला है. यू कैन यूज स्टार्ट विथ आइदर दिस और दिस. ठीक है, राइट. नाउ सी, 3.4 I will begin with the first sum only. 3.4 का फर्स्ट सम. ठीक है, the first sum में whatever the matrix given, the first thing is always you assume it A. A जो भी मैट्रिक्स है उसको आप A बोल दो. A is equal to 1 minus 1 2 3. Okay, 2 3.
ठीक है। सो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर टेक्स्ट बुक ओपन, पेज नंबर 97, ठीक है। पेज 97, एक्सरसाइज 3.4, 1 - 1 2 3, ठीक है। राइट नाउ अभी मैंने जो नोट लिखा, इंपॉर्टेंट नोट, उसके हिसाब से क्या करेंगे। वी नो दैट ओके, A is equal to IA. I am taking IA, you can take AI, no problem, ठीक है। A is equal to IA. That means now here this is our A matrix. So 1 - 1 2 3 is equal to I. What is I? 1 0 0 1. And most important thing दोस्तों, यहां पर A ही लिखना है. This is the method. Be careful. Okay. Don't put here also matrix A what we have assumed. Okay. Left hand side में आप A रखो, right hand side में A put A only. I you put 1 0 0 1. ये हो गया स्टार्टिंग हमारा, ठीक है। अभी we will begin with the elementary operations. क्या करेंगे हम? Elementary operations. और now remember what we have to do. आप सुन लो ध्यान से, हमको क्या करना है। On the left hand side ये जो है ना RHS, ओके, उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ओके, व्हाट टू डू, you have to apply such an operations, elementary operations, RI CI जो भी करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो क्या होना चाहिए, 1 0 0 1 हो जाना चाहिए। ओके, नोट, when we begin after this, always remember, okay, remember that on the LHS, on the left hand side, okay, by applying the elementary operations, okay, we have to obtain आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी प्रोसीजर है। वी हैव टू ऑब्टेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, बिकॉज दिस इज 2 by 2। अगर वो सम 3 by 3 वाला होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that you have to obtain, means you have to get on which side, on left hand side, okay, on the left hand side. And whatever the operations we are doing, that operations will be applying on both the side. आप जो भी ऑपरेशन करोगे, अभी मैं देखता हूं कि मैं जो भी मैं करूंगा ना, तो मैं खाली लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करूंगा, मैं दोनों साइड में करूंगा, ठीक है। आई विल डू इट ऑन द बोथ द साइड। इज दैट क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखना है, देखो, बिकॉज दिस द फर्स्ट सम, नो, इट विल टेक लिटिल टाइम टू मेक इट अंडरस्टैंड, मेक इट क्लियर। once you are clear in it, then you have to practice more and more sum from this exercise. Is that clear? Right? And what more I told you, that whatever the elementary operations you apply, we apply the elementary operations on the both the side also. Okay, we apply elementary operations, okay, I'm writing in short, elementary operations on both the side, on both the side at a time. At a time means खाली लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई नहीं करना है, आप जो भी अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही अप्लाई राइट हैंड साइड में भी करना है। ओके, नाउ दिस इज द अनदर नोट आई हैव गिवन,
The first note I have given before the sum, that you always begin with a is equal to IA or a is equal to AI. ठीक है, राइट? सो ये दूसरी नोट हो गई. अब इसके हिसाब से क्या करना है दोस्तों हमको, आप ध्यान से देखो. तो आई वॉन्ट ना 1001 दिस साइड. सो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है दोस्तों, तो हमारे लिए वो एडवांटेज हो गया, बिकॉज कुछ नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी 1. अगर नो नहीं होता तो मैं कुछ सोचता, बट इट इज ऑलरेडी 1. इफ इट इज देयर, तो अब 1 के नीचे साइड में नहीं जाना है, वो याद रखना. 1 के अपॉन नीचे वाला जो नंबर है ना, ओके, ये 2, वो 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, isn't it? The 2 must become what? 0. So first 1 is already there, then below 1 you make 0 whatever is there. ये राइट हैंड साइड वाला 0 भी लाना है, लेकिन वो पहले मत लाओ, याद रखो, पहले उसको मत लाओ, पहले उसके नीचे वाला का. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखो तो, राइट नाउ देखो, टेकिंग or doing, see what is going to happen in the second row. ध्यान से देखो, ये सेकंड रो है R2. R2 में क्या करेंगे हम, R2 minus 2R1. Okay, now tell me, how do I come to know this operation? R2 goes to R2 minus 2R1. ये मैंने क्यों सोचा, because I just look at this digit. What is this digit दोस्तों, ये digit कौन सा है, 2. ठीक है. Now what do you mean by 2R1? 2R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय 2. सो अगर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2. और वो R2 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, isn't it? तो R2 means this is 2 minus 2R1. So 2 minus 2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं. So what was our purpose, to get 0. बाकी जो भी बनता है बनने दो, सोचो ही मत, आगे ये वाले जो भी डिजिट्स का जो भी होना है होने दो. आवर पर्पस इज टू गेट 0 ओवर हियर. सो मैंने ओनली वही सोचा कि यहाँ पर मैं 0 कैसे लाऊं. सो फॉर दैट आई डू दिस. ओके, R2 goes to R2 minus 2R1. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, फर्क किस में पड़ने वाला है, फर्स्ट रो नो चेंज, 1 minus 1. अब ध्यान से देखो, ये 2 जो है, ये 2 हो गया 0. अभी ध्यान से देखना है, 2R1 means this minus 1 multiplied by what, minus 1 multiplied by 2. तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. और आगे माइनस है तो +2 हो जाएगा. तो ये 3 है. सो 3 में +2 ऐड हो जाएगा, 5. होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने 5 लिखा, कैसे लिखा, वन मोर टाइम, because it's the first time I'm just explaining little bit more. R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. 2R1 मतलब क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, और आगे माइनस है, सब्ट्रैक्शन करना है. सो 3 minus -2. 3 minus -2 will be +2. So 5. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों. अब मैंने क्या लिखा है, वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन बोथ साइड एट ए टाइम. मतलब ये जो ऑपरेशन किया वो खाली एलएचएस में नहीं करना है, हमको यहां पर भी करना है दोस्तों. तो यहां पर भी करना है तो उसमें ये 1 0 तो 1 0 ही रहेगा, बिकॉज फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. अभी क्या है, R2 minus 2R1 के हिसाब से देखो तो दोस्तों, इफ यू थिंक लाइक दैट, R2 minus 2R1, सेकंड रो जो है उसमें से 2R1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे 2, सो -2 हो गया है ना, -2 होगा ना. सो 0 -2, सो -2. होप यू अंडरस्टैंड दिस. 0 है, उसमें -2R1, सो -2. अभी यहाँ पर देखो 1 है. ओके, अब
जीरो को आप -2r1 मतलब जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जीरो इज गोइंग टू रिमेन जीरो ओनली, और R2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो 1 का 1 ही रहेगा। ओके, इनटू ए, तो ए रिमेन ए ओनली, ए को ए ही छोड़ो, ए में कोई फर्क नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलो ये हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, राइट। नाउ व्हाट आफ्टर डूइंग दिस, हमको क्या लाना है? 1001। तो देखो यहाँ पे 10 आ गया। अभी हम ये करेंगे दोस्तों, ये 5 है, यहाँ पर देखो ये 5 है, तो ये 5 को मैं 1 बनाना चाहता हूँ। तो ये 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। टेकिंग, ओके, टेकिंग, जस्ट बी केयरफुल हो, आप यहाँ पे 1 बनाओ तो ये 0 निकल नहीं जाना चाहिए। ऐसा ऑपरेशन करो कि हमने जो ऑलरेडी लाया हुआ है ये चेंज नहीं होना चाहिए। कभी कभी यहाँ 5 के जगह पे 1 आ जाएगा, लेकिन आपने जो पहले लाया हुआ है वो निकल जाएगा। इफ यू डू दैट देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ओके, R2 R2 goes to 1/5 R2। बोलो क्या किया हमने? ये जो सेकंड रो है ना, उसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। लेट अस से लाइक दैट, डिवाइडिंग सेकंड रो बाय 5, सिंपल। तो यहाँ पे 5/5 क्या हो जाएगा? 1, और 0/5 क्या हो जाएगा? 0 ओनली। सो देखो हमारा पर्पस था 0 रिमेन 0, 0 चेंज नहीं होना चाहिए, इजंट इट? ओके, तो क्या आ गया दोस्तों? अगेन फर्स्ट रो नो चेंज, this 0/5, so 0 only, 5/5, 5/5, तो ये 1 हो गया। Now the same operation you have to apply on both the side at a time। तो यहाँ पे भी करो, राइट हैंड साइड में भी करो। ठीक है, सो 1 0, ठीक है, और अभी इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/5 से, मतलब 5 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, ऊपर तो -2 है, तो -2/5, और ये क्या हो जाएगा? 1/5। सेकंड रो डिवाइडेड बाय 5 और से मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इनटू ए। ठीक है, हो गया, राइट। नाउ व्हाट? नाउ जस्ट सी 101 आ गया। अभी यहाँ पर जो -1 है ये हमको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब स्टेप मेरा देखो, पहले मैंने 1 के नीचे 0 लाया, जितने भी थे टर्म्स वो, फिर 0 आने के बाद उसके बाद था उसके ऊपर ये -1 है, उसको मुझे 0 करना है। Now when I do that, be careful that this remain whatever we got 101 वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या करें हम? If you see, I am writing it on the another page, but I am explaining it here। R1 जो है उसमें R2 ऐड कर दो, तो R1 प्लस R2 करो, तो रो 1 प्लस रो 2 क्या होगा? 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0 आ गया, सिंपल। मतलब व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू ऐड R1 प्लस R2। ठीक है कि नहीं? वो ऑपरेशन को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों। टेकिंग, ओके, टेकिंग R1 टू R1 प्लस R2, ऐसे समझे? R1 गोज टू R1 प्लस R2, मतलब कि फर्स्ट रो जो है उसमें हमने फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो उसमें ऐड किया। दिस इज द सिंबॉलिक। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको लंबा लंबा लिखना पड़ेगा कि एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ऐसा लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट? सो बेटर, दिस इज द बेटर वन। नाउ टेकिंग R1 to R1 plus R2 we get, ठीक है, अभी पीछे के पेज पे है तो मैं वहां से लिख रहा हूं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी अभी मैंने समझा है उसके हिसाब से 101
ये भी 0 आ गया. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटू ए ऑलरेडी है. अभी सेकंड रो में भी कोई फर्क नहीं है. सेकंड रो हमारी है -2/5 और 1/5, ये भी ऑलरेडी है. अभी हमने क्या किया है दोस्तों, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है, राइट. मतलब जो इसकी फर्स्ट रो थी, होप यू कैन, ये थोड़ा सा मैं टर्न करके भर, ये हमारा फर्स्ट रो है, देखो ये रही है ना 1 0. उसमें ये वाली टर्म सेकंड रो फर्स्ट में ऐड करना है. सो 1 -2/5, 0 प्लस 1/5. ओके, हाँ, होप यू कैन सी दिस, है कि नहीं, राइट. नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और टर्न लगाता हूं. नाउ यू कैन सी, आई होप. ये रहा, देखो. ऐड